Assalamu alaikum students, this is me Mrs. Anila Yasmin. Today we will discuss our last chapter, last essay of your book English TV Addiction. So today we will discuss this essay, what has been described in this essay, and what are the points which we have to follow. TV addiction, the word addiction, we will TV, you would be familiar with this word. जैसे कि आपको पता है कि टीवी की क्या अहमियत है, टीवी क्या होता है, टेलीविज़न जिसको हम कहते हैं। तो एडिक्शन का मतलब है कि जिसमें आप मतलब आदत, किसी चीज़ की एडिक्ट हो जाना, किसी चीज़ के साथ आपकी एक ऐसी वाबस्तगी हो जाए कि आप उसके बगैर कुछ काम नहीं कर सकते। तो राइट्रेस जो इसकी ऑथर्स है वो भी ऐसे ही इसके डेफिनेशन से ही स्टार्ट करती है कि द वर्ड एडिक्शन इज़ ऑफन यूज्ड लूजली एंड क्लेवरली इन द कन्वर्सेशन, so people will prefer to themselves as mystery book addicts or cookie addicts. So it is described in the very first line that the word addiction stands for, that if this word is used cleverly and loosely in the conversations. So in other words आप ये कह सकते हैं कि जो राइटर है इस ऐसे की, वो ये बताना चाहती है कि बहुत ज़्यादा टीवी देखना जो है वो डेंजरस है, इतना डेंजरस है जैसे कि हम किसी चीज़ के नशे के आदी हो जाते हैं। और टीवी का नशा भी ऐसा ही है कि ज़हनी तौर पर अब अपने आप को किसी मतलब उस एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं और मुस्तकिल आप टीवी के इर्द गिर्द रह जाते हैं। सो ऑल्सो शी डिस्क्राइब्स दैट पीपल ऑफन रेफर टू बीइंग hooked on TV. It does this to fall into the light-hearted category of the cookie eating and other pleasures that people pursue with unusual intensity. Or is there a kind of television viewing that falls into the more serious category of a destructive addiction? So addiction, again he is using the she is using this word, and the writer, she is telling us that what sort of addiction it is, that we are not able to do anything unless until we are away from it. So वो भी यही बताना चाह रही है कि टीवी का जो नशा है वो बाकी नशे की तरह ही है, कि जैसे कि एक आदि शख्स जब टीवी के सामने बैठता है तो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बिल्कुल भूल जाता है, अपनी सुस्त ज़हनी हालत में रहता है और किसी भी यूज़फुल एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी सारी तवज्जो, उसकी सारी अटेंशन जो है वो टीवी व्यूइंग की तरफ होती है और अपनी इस अदर असाइनमेंट्स को वो बिल्कुल ही अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। सो ये भी मतलब कोई पॉजिटिव बात नहीं करती राइटर जो है इस ऐसे को डिस्क्राइब करने में। वो यही कहती है कि एक्सेसिव टीवी व्यूइंग इज़ डेंजरस, इट इज़ एज डेंजरस एज ड्रग और वाइन एडिक्शन. So a TV addict cuts himself off the real world mentally like a drug addict. So फिर इतनी मतलब एक बहुत ही इंटेंसिटी इसकी राइटर ने बहुत ज़्यादा बता दी कि जिस तरह एक ड्रग्स लेने वाला एडिक्ट है, जिस तरह वो इस एडिक्शन के बगैर, ड्रग्स लिए बगैर नहीं रह सकता, टीवी का एडिक्ट भी टीवी देखे बगैर नहीं रह सकता. She also says that like a drug addict, he begins having a passive mental condition. In this way he tries to escape from the fever and fret. मीन वो किसी भी और एक्टिविटी से, काम से अपने आप को बचाता रहता है, क्योंकि उसको लज़्ज़त महसूस होती है टीवी के सामने बैठकर देखने में, अपनी रियल लाइफ की जितनी भी परेशानियां वो भूल जाता है. So in normal daily life, people try to get rid of the problems by seeking the pleasures of addiction. With the passage of time, they come to depend on them. They repeat these pleasures in order to live or work normally. After these pleasures, very soon they are forced to have them again. They think that they can control addiction, but they are so deep rooted in it. The pleasures of addiction harm and shorten the addict's lives badly and make him abnormal. So it has been described that it is not a normal activity that all the time you remain before television
and you spend a plenty of time before it, so it is not a good thing. एंड ऑल्सो शी सेज कि टीवी एडिक्शन जो है वो एक ड्रग वाइन की तरह है. A TV addict forgets the outside world whenever he sits before a TV set. He passes through a passive mental condition. He may like to take part in some useful activity but fails to materialize his wish. So he cannot do anything else seriously because nothing is more attractive to him. All other activities lose luster before viewing TV. This thing makes a TV addict life as imbalanced as that of a drug addict. He cannot progress in life as he wastes most of the time in TV viewing. And in the end, she tells us that a TV addict is not satisfied after watching TV for any length of time. All the other experiences become unreal before the reality of his TV programs. कि जितनी भी और एक्टिविटीज़ हैं वो अनरियल हो जाती हैं, गैर हकीकी हो जाती हैं उसके टीवी प्रोग्राम्स के आगे. और also it has been described that he ignores, the TV viewer ignores his social life, so his relationships start weakening. He cannot get satisfaction from any other entertainment, and like an addict tries to repeat it again and again. In short, he falls to give up his addiction, which leaves a deadening effect on his personal as well as social life. So जो राइटर है वो बिल्कुल इस बात को पॉजिटिव नहीं ले रही कि टीवी को देखना कोई इतनी हेल्दी बात है, बल्कि वो ये कह रही है कि जो टीवी देखने वाले लोग हैं वो इससे एक तरह से एडिक्ट हो जाते हैं. आप ये कह सकते हैं कि टीवी एडिक्शन क्या है, तो आप बताएंगे. व्हेन वी स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टीवी एंड इग्नोरिंग आवर सोशल एंड नॉर्मल लाइफ, इट बिकम्स टीवी एडिक्शन. हाँ, तफरी के लिए देख लेना, एंटरटेनमेंट के लिए देख लेना, थोड़े टाइम के लिए अपने आप को एंटरटेन करने के लिए देखना एक अलग बात है, लेकिन मुस्तकिल टीवी के साथ अब आप टीवी की जगह, अब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है कि उस टीवी की जगह अब हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन्स हैं, और वो मोबाइल फ़ोन्स उन टीवी की तरह ही आप देखें कि वो भी हम उनके लिए कितनी एडिक्शन में हैं हम कि वी ऑल द टाइम स्पेंड आर टाइम ऑन सोशल मीडिया, Facebook, Twitter, WhatsApp, and now your Zoom class also you have to take help. So हर चीज़ के नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं. जब हम किसी चीज़ को किसी अच्छे पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते तो फिर वो हमारे लिए एक एडिक्शन बन जाती है, जहाँ पे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़, दूसरी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम भूल जाते हैं. सो राइटर जो है वो बिल्कुल इस बात के हक़ में नहीं है कि ज़्यादा टाइम टीवी के सामने गुजारा जाए, और वो इस बात को कंपेयर कर रही है एक एडिक्शन के साथ कि क्वालिटीज़ एडिक्ट की क्या होती हैं. शी सेज दैट एन एडिक्ट लिव्स इन अ प्लेजरेबल एंड पैसिव वर्ल्ड. ही हैज़ नो सेंस ऑफ टाइम or other useful activities of life, and he is never satisfied with his deep rooted habit. इतना टीवी देखने के बाद भी उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती. तो किस तरह अवॉइड की जा सकती है टीवी एडिक्शन? सो वी कैन अवॉइड टीवी एडिक्शन बाय पार्टिसिपेटिंग इन सर्टन इंडोर आउटडोर गेम्स और अदर एक्टिविटीज़ ऑफ आवर ओन चॉइस. सो अगर आप चाहते हैं कि आप इस एडिक्शन से या टीवी, और अब तो इसको मेरा तो ख्याल है इस मॉडर्न पीरियड में, इरा में, हमें टीवी एडिक्शन के बजाय मोबाइल एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन से रिप्लेस कर देना चाहिए. एनी हाउ इस चैप्टर में आपको बहरहाल जो राइटर है वो अपना व्यू दे रही है कि टीवी एडिक्ट क्या है. सो टीवी इज़ अ मॉडर्न इन्वेंशन. इट इज़ इंफॉर्मेटिव इन वेरियस वेज. It is used wisely. It should be used wisely, and if it is used wisely, it can be beneficial for us. So thank you very much students. आज हमने अपना आखिरी चैप्टर टीवी एडिक्शन पढ़ा. आपने इसका एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन है, क्रिटिकल समरी याद करनी है. पेपर में एक जनरल क्वेश्चन आएगा अगर इसमें से लिया जाता है कि what are the harms and benefits of TV viewing, और what is TV addiction according to the writer. तो आपने उसके बारे में लिखना है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.